ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल जैसे कोमल दिव्य चरणों में मेरा विनय एवं प्रेम पूर्वक प्रणाम। महालय अमावास्या के सुअवसर पर धर्मक्षेत्र समर्पण के आयोजक दल और श्री सत्य साई विद्या संस्थानों के पूर्व छात्रों की तरफ से आप सबको मेरा प्रेम पूर्वक साई राम। All of you may be wondering why I have switched to this form of Hindi, but it is just my way of welcoming and honoring our beloved Professor of Hindi, who is the guest speaker for today's Samarpan, Shri Suresh Chand Jain sir. On this very auspicious eve of Navratri, where the whole nation gets into a mode of devotion and surrender to the Devi, we are really honored and privileged to have with us Shri Suresh Chand Jain to share with us his experiences at the Divine Lotus Feet and learnings from the Divine Lotus Feet. Born and hailing from the city of Sojat in Pali district, Rajasthan, Sir completed his secondary education in his hometown in the Hindi medium, after which he moved to Bangalore to continue his education, where he completed his Bachelor of Arts in the English medium and went on to do his Masters in Hindi, securing the third rank in Bangalore University. He had his first darshan of Bhagwan in July 1973 and joined the Divine Mission as a member of the Sri Satya Sai Seva Dal in Vrindavan. In 1988, upon the divine instruction from Swami, he joined the Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, Vrindavan campus, as a professor of Hindi language and the head of Department Hindi. He served the institute for 20 years, right up until his retirement from teaching in 2012. Simultaneously, through all this time, he was managing his ready-made textile business based out of Bangalore. Throughout his association with Bhagwan, whether it was as a Sevadal or as a professor, he has been blessed with several very close interactions as well as personal interviews and group interviews with Swami. He has been an ardent follower of Jainism throughout and has been, since retirement, contributing to a monthly column to 2 magazines of Jainism, blending the teachings of Bhagwan Sri Satya Sai Baba and Bhagwan Mahavir. To us, his students, we shall always remember his generosity, both in terms of food and in terms of marks throughout. In fact, I was just remembering last Sunday being Hindi Divas, we would all be gathered as his students for a grand celebration of not only the Hindi language but also our devotion to Bhagwan. Therefore, it is with great humility and love that I welcome Shri Suresh Chand Jain to please share his learnings and experiences with Bhagwan on this auspicious occasion of Samarpan. Sai Ram. ओम श्री साई राम। पल पल भगवन तेरा ही ध्यान,
आचरण कर लूं दिया जो ज्ञान। पल पल भगवन तेरा ही ध्यान, आचरण कर लूं दिया जो ज्ञान। तू मेरा मंदिर है, तू मेरी पूजा है, तू मेरे भावों की धारा को सुन। पल पल भगवन तेरा ही ध्यान, आचरण कर लूं दिया जो ज्ञान। ओम श्री साईराम। भगवान के चरणों में कोटिशो वंदन। और यहां पर विराजित आत्मबंधुओं, भगवान ने इतना दिया है कि झोली फट जाती है, झोली में समेट नहीं सकते। हमारी झोली बहुत छोटी होती है, हमारी सोच बहुत छोटी होती है। हम जो मांगते हैं वो बहुत छोटी बातें मांगते हैं, क्योंकि हमारी सोच वैसी है। हम वैसे ही वातावरण में पले बड़े हुए, अनुभव तो इतने हैं कि कहां से शुरू करूं और कहां अंत करूं समझ में नहीं आता। भगवान एक एक पल ऐसे लगता है कि भगवान ने एक एक पल जैसे मेरे लिए ही बिताया है, मेरे लिए ही भगवान इस पृथ्वी पर आए, ऐसा अनुभव होता था। अभी सोचो और नेक्स्ट मोमेंट ही इज रेडी विथ आंसर। ऐसी इतनी घटनाएं, एक दो घटना हो तो फिर भी कभी संयोग मान लें। हमारा दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, हम संयोग मान लेते हैं कि संयोग हो गया होगा, पर एक दो घटनाएं नहीं, कंटिन्यूस। तो 1974 में सबसे पहला वार्तालाप हुआ। मैं वॉलंटियर बन गया था। वॉलंटियर बनते ही 2-4 दिन में काम पर लग गए। वी आर बेसिकली जॉब थिंकिंग पीपल, काम करते रहना चाहिए। उस समय हॉस्टल, जो आज का हॉस्टल है, वहां पर स्विमिंग पूल था, बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट सेम साइज का स्विमिंग पूल था, और बड़े बड़े पत्थर थे। हमें काम दिया गया कि इन पत्थरों को हटाकर निकालना है बाहर। स्वामी के दर्शन हो गए करीब 10:15 बजे। उस समय लेट आते थे, 8:30-9 बजे आते थे। 10 बजे के करीब हम फ्री हो गए, काम पर लग गए। करीब 20-25 वॉलंटियर कहना गलत है, क्योंकि स्वामी ने एक बार कहा था कि वॉलंटियर मीन्स वॉलंटियर। वॉल जो रोकते हैं और टीयर जो लोगों को दुख पहुंचाते हैं, है ना। तो सेवा दल शब्द यूज करो, ऐसा स्वामी ने कहा था। वॉलंटियर इज नॉट। फिर काम पर लग गए, क्रोबर हाथ में, और खूब जोश तो था। 20 साल का लड़का काम पर लगा हुआ था। पूरी मेहनत से करीब 12-12:15 बजे रेस्ट लिया, खाना खाया, और फिर वापस लग गए काम पर। 2 बजे होंगे, 2:10 एग्जैक्टली याद नहीं है, 2 या 2:10 की बात है, PM। स्वामी नीचे आए। कभी 6 महीने की बातें हैं, कभी स्वामी 2 बजे नीचे नहीं आए। वृंदावन में करीब 3:30-4 बजे ही के बाद में ही नीचे आते थे। उस दिन 2 बजे नीचे आ गए। हम 25 वॉलंटियर थे, वहां पर पत्थर निकाल रहे थे। मैं भी क्रोबर हाथ में लेकर अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा था। स्वामी आगे, पीछे खड़े हैं सब लड़के, सब सेवादल मेंबर्स हाथ जोड़कर खड़े हैं और हंस रहे हैं, क्योंकि मैं अपने क्रोबर से लगा हुआ था पत्थर को निकालने में। मुझे मालूम ही नहीं कि कब स्वामी आए, कब पीछे खड़े हो गए, कब स्वामी सेवादलों ने हाथ जोड़कर काम करना बंद कर दिया और हाथ जोड़कर स्वामी के सामने खड़े हैं। मैं अपने अकेले मस्ती में क्रोबर से लड़ रहा था, पत्थर से लड़ रहा था।
अचानक हंसने की आवाज़ जब तेज हुई तो देखा कि सब वॉलंटियर हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो जिस डायरेक्शन में वो देख रहे थे, मैंने देखा कि पीछे ही स्वामी खड़े हैं। मैं कूदा थोड़ा और साइड में हुआ, क्योंकि एकदम पीछे थे, जस्ट 1.5-2 फीट बिहाइंड। तो स्वामी मुस्कुराए, कहा गुड बॉय, एंड अपने रास्ते भगवान तो चले गए। बट दैट वॉज टू मच फॉर मी टू डाइजेस्ट। गुड बॉय कह दिया और क्या चाहिए, है ना। फिर तो झड़ियां लगने लग गई। नेक्स्ट संडे गेट ड्यूटी थी, वृंदावन के गेट के पास खड़ा था मैं, और हमारा एक क्लासमेट दोस्त था, वो भी सेवादल में ही था। दोनों 99% हम गेट पर रहते थे, दोनों, नरोत्तम कीर्ति रावल और मैं। स्वामी 8 बजे करीब नीचे आए, इंटरव्यू रूम का दरवाज़ा खोला, आवाज़ तेज की। जब दरवाज़ा खोलते थे, जब बताना चाहते थे, तो दरवाज़ा की चिटकने की आवाज़ आती थी। तो हमें मालूम पड़ गया कि स्वामी आ रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं। देखा, स्वामी ने बुलाया और मज़ा आ गया। मज़ा क्या आ गया, स्वर्ग में पहुंच गए हम। स्वामी ने बुलाया, भाग कर गया और स्वामी ने एक मुक्का मारा पेट में। ओह, दैट वाज हाउ आई यूज्ड टू मीट माई फ्रेंड्स। दैट वाज हाउ आई यूज्ड टू मीट माई फ्रेंड्स। आई यूज्ड टू हिट एट एब्डोमन और मिलते थे, हम बात करते थे। साईराम या जय जिनेंद्र वो सब नहीं बोलते थे, हम तो मारते थे। एंड दैट इज हाउ स्वामी रिएक्टेड। और किस जगह पहुंच गए हम, अहंकार कहां कहां पहुंचाता है। इतनी छोटी बात नहीं है वो, उसमें बहुत बड़ी बात थी वो। फिर क्या करते हो, एमए हिंदी कर लिया, स्वामी चल रही है, ठीक है मेरे कॉलेज में आ जाना। और क्या चाहिए, मैंने कहा स्वामी आप, शादी नहीं चाहिए, श्रीमती जी को लेकर आया हूं। पूछा शादी नहीं चाहिए, कोई जवाब नहीं था, उतनी समझ नहीं थी कि मैं कुछ बोलूं। फिर कहा स्वामी ने गुड बॉय और दर्शन के लिए आ गए। ये दो जो थे मेरा बेस है, ये दो घटनाएं मेरे जीवन की नींव है। क्योंकि एक्चुअली पहले एक नींव पड़ गई थी, पर उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। जब जुलाई में मैं सबसे पहले आया था, नरोत्तम कीर्ति रावल जो मेरा एमए में क्लासमेट था, वह स्वामी के यहाँ पर पहले पुजारी थे। उनके दादा पुजारी थे। और वो जब एमए हिंदी में आया, मैं भी आया वहाँ पर, वो भी एक अलग घटना की कैसे स्वामी पुल करते हैं, कैसे स्वामी अपने शतरंज के गोटियों को कहाँ कहाँ फिट करते हैं, कैसे कैसे फिट करते हैं। मैं इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्टेड था। जब मैंने बीए की परीक्षाएं पास की तो मैं सोच रहा था कि मुझे भारत के रिजर्व बैंक की इकोनॉमी को सुधारना है। दैट वाज द थिंकिंग। इकोनॉमी बिल्कुल बेकार है। जो मैं समझ सका कि भारत की इकोनॉमी बिल्कुल खराब है, उसको सुधारना है, रिजर्व बैंक तक पहुंचना है। दैट वाज द आइडिया। पर इकोनॉमी में, एमए इकोनॉमी में सीट मिली नहीं, तो किसी ने आइडिया दिया, हमारे जीजा जी ने, कि हिंदी में अप्लाई कर ले, नेक्स्ट ईयर वापस कर लेना, डबल एमए हो जाएगी। इनका ठीक है। तो हिंदी एमए में भी है। और जो नरोत्तम कीर्ति रावल था, वो मेरे 1 साल सीनियर था। पहले मिलाप नहीं हुआ था। वह बीएससी किया उसने, और एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहा था। एमबीबीएस के लिए उसने दावनगिरी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर लिया, उसको सीट मिल गई।
पैसे तैयार हो गए बिफोर 1 ईयर, ये 1 साल पहले की घटना है। वो तैयार हो गया, पैसे तैयार हो गए, जाना है, बस कल सुबह निकलना है। और उसका मालूम नहीं क्यों रात को मूड खराब हो गया या मूड बदल गया। उसने कहा नहीं, मैं MBBS नहीं करूंगा, कल स्वामी से पूछेंगे, और वो कैंसिल हो गया। तो 1 साल उसने वेस्ट किया, 1 साल वह बैठा रहा। फिर स्वामी से पूछा तो स्वामी ने कहा लिटरेचर करो। स्वामी ने उससे कहा लिटरेचर करो, MBBS करने वाला। स्वामी ने कह दिया लिटरेचर तो लिटरेचर जाना है। एंड ही वॉज वेरी गुड इन इंग्लिश, मैं तो 0 था। वो भी एक अलग घटना है कि कैसे मैं राजस्थान से आया हिंदी मीडियम से, और यहां पर आकर मेरे तो कान खड़े हो गए। इंग्लिश मीडियम में टीचर आ रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट वॉज टू मच फॉर मी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो कीर्ति रावल ने MBBS का कैंसिल हो गया, लिटरेचर की बात आई। ही वॉन्टेड टू गो फॉर इंग्लिश लिटरेचर, वहां पर अप्लाई किया तो ही कुड नॉट गेट सीट देयर आल्सो। एंड उसी को किसी ने कहा कि चलो हिंदी में चले जाओ। देखो कैसे एक 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 शतरंज की चाल चली जा रही है। वो भी हिंदी में आया, हिंदी में सीट मिल गई, तो हम दोनों साथ में पहुंच गए वहां पर। शायद जून पूरा महीना वो बाबा के बारे में बता रहा था। 1 महीना, करीब 1-1.5 महीना हमेशा बाबा के अलावा कोई बात ही नहीं थी। उनका भाई कौन है, क्या है। हम 3 थे, त्रिमूर्ति कहलाते थे कॉलेज में। मैं, नरोत्तम कीर्ति रावल, और एक का नाम भूल रहा हूं मैं, नाम याद करने में बहुत कमजोर हूं, तो इसलिए मैं नाम लिख कर लेकर आया हूं, भूल जाता हूं मैं। मेरे स्टूडेंट्स जो थे वो हमेशा बोलते थे कि क्या है, 2 साल हो गए सर हमारा नाम याद नहीं है आपको। मैंने कहा तेरी आत्मा मुझे मालूम है, नाम क्यों चाहिए। कृपानिधि, द 3rd फेलो वाज कृपानिधि। हम तीनों साथ में रहते थे, एक ही एरिया से थे, तो बस में जाना आना सब साथ में होता था। और हर समय, मतलब एक पल भी नरोत्तम कीर्ति रावल एक पल भी चुप नहीं रहता था। स्वामी के अलावा कोई बात नहीं होती थी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। व्हाइटफील्ड में आए, उसने कहा कि आज स्वामी यहां पर हैं, चलो चलते हैं, कल संडे। मैंने कहा चलो चलते हैं। संडे आए, उसमें स्वामी 8:30-9 बजे आते थे। जुलाई के महीने में अच्छी गर्मी थी, और वहां पर इतना बैठने का साधन नहीं था। एक छोटा सा घेरा था, आयरन सीट से बना हुआ था, बाहर बैठे थे धूप में। स्वामी आए, 2 फीट दूर से ही चले गए, 4 कदम आगे चले गए। तो मैंने कहा ये ठीक है, आए चले गए। पर 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ने के बाद में फिर मुड़कर देखा, और डायरेक्ट आई टू आई, एक डायरेक्ट चलते चलते आई टू आई देखना, कनेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। 1 सेकंड के लिए, और ऐसे कह रहे थे, मुस्कुराए, ऐसे ऐसे मैंने महसूस किया कि बेटा मैं सब जानता हूं। ऐसा भाव था उनके चेहरे पर जो मैं समझ पाया। फिर ये 2 घटनाएं हुई, बात खत्म हो गई। फिर तो हमेशा हर संडे, अगर स्वामी बात नहीं करे संडे को, तो सुरेश व्हाइटफील्ड गया ऐसा मान ही नहीं सकता। स्वामी बात ना करे और बिना बात किए व्हाइटफील्ड से वापस आ जाएं, हो नहीं सकता था हर संडे। और उस समय स्वामी आते भी अच्छे थे, बहुत, काफी 8-9 महीने वृंदावन में रहते थे। आनंद था, लूटा खूब। फिर जब कॉलेज पूरी हो गई तो स्वामी से कहा मैंने कि स्वामी मेरी हिंदी MA हो गई है। तो स्वामी ने कहा ठीक है। अपने प्रोफेसर नरेंद्र थे प्रिंसिपल, उनको बुलाया, कहा कि इसको कल से क्लास दो। अब मुझे भी मालूम था कि ऑलरेडी डॉक्टर गुप्ता वहां पर हैं, और हिंदी की क्लासेस होती हैं ओनली फॉर 1st and 2nd ईयर, वो भी 5-5 10 घंटे। एक लेक्चर के लिए 10 घंटे बहुत कम है। ऑलरेडी एक लेक्चर, वो भी 10 घंटे ही पढ़ा रहा है, दूसरे को वहां पर रखना नॉट पॉसिबल। अब जब स्वामी ने कह दिया तो नरेंद्र सर ने बुलाया, कहा कल आ जाओ कॉलेज, क्लास देंगे। क्लास ले ली।
3-4 दिन क्लास ली, स्वामी तो भाग गए, मेरी लैंग्वेज ऐसी है, स्वामी तो वृंदावन से चले गए पढ़ती, और मैं क्लास ले रहा था। फिर नेक्स्ट डे सुदर्शन सर थे, वार्डन, डॉक्टर सुदर्शन थे वार्डन, उन्होंने बुलाया कि सुरेश, स्वामी ने तेरे लिए पैकेट दिया है और कहा है कि वेट करो, इंतजार करो। एक पैकेट दिया विभूति का और कहा कि इंतजार करो, तुम्हें लेंगे। उनका ठीक है, जानता तो मैं भी, समझता तो मैं भी था कि पॉसिबल नहीं है। ये 76-77 की बात है। 88 में वापस मुझे नरेंद्र सर ने याद किया। ये 14 साल जो थे, 74 से 88 तक, इतना आनंद लिया, इतना आनंद लिया कि मैंने कहा ना, जोली फट जाती है, कुछ हिसाब नहीं था। जयनगर में आए, हम जयनगर में रहते थे, डॉक्टर पद्मनाभन का घर भी जयनगर में था, स्वामी के काफ़ी क्लोज थे। स्वामी आए थे वहाँ पर, तो मुझे नरोत्तम कीर्ति रावल के अंकल थे, तो मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ पर आए हुए हैं स्वामी। मैं गया वहाँ पर, जब स्वामी लौट रहे थे तो स्वामी ने कहा, तू कहाँ रहता है? मैंने कहा, स्वामी बिल्कुल नज़दीक है, पहले बोला होता तो मैं तेरे घर आ जाता। पॉलिटिक्स है ना, जैसे उनको मालूम नहीं है, पहले बोला होता तो मैं घर पे आ जाता। मैंने कहा, स्वामी कृपा कराइए। ठीक है, नेक्स्ट। हम जब मालूम हो जाता कि स्वामी बेंगलोर आ रहे हैं, तो मैं कार में उसका 2 व्हीलर से पीछा करता। स्वामी कार में है, मैं 2 व्हीलर में हूं, और इतना नज़दीक, स्वामी की कार यहाँ पर है, स्वामी यहाँ पीछे बैठे हैं, मैं बिल्कुल पास में चल रहा हूँ, और स्वामी इशारों में, हाथों से, आंखों से वार्तालाप करते थे। इतना आनंद आता था। तो एक बार राधा कृष्ण जो स्वामी की गाड़ी चलाते थे, उन्होंने कहा मुझे बुलाकर, ये कई बार हुआ, 5-7 बार, तो राधा कृष्ण एक बार बुलाकर कहा, सुरेश देखो, तुम और स्वामी ठीक है, नो इश्यू, पर अगर जो पास में बैठे हैं, डॉक्टर पद्मनाभन हैं, कर्नल जोगाराव थे, और अपने भगवंतम के बेटे रामकृष्णन थे, डॉक्टर भगवंत के बेटे डॉक्टर रामकृष्णन, ये सब अगर इन्होंने कंप्लेन कर ली, एक बार शिकायत कर ली कि क्या कर रहा, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए, कहीं लग जाए, ऐसा कुछ बोल दिया तो फिर तेरी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए पीछे रह, थोड़ा साथ साथ में मत चल, थोड़ा पीछे रह। तो मैं फिर थोड़ा पीछे, जब राधा कृष्ण ने कहा है तो फिर नेचुरली मानना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल नज़दीक है स्वामी के, कहीं शिकायत ना हो जाए। स्वामी, मैंने ऐसा महसूस किया कि स्वामी कुछ नहीं करेंगे जब तक कोई दूसरे भाई कोई शिकायत नहीं करेंगे। स्वामी के लिए सब बढ़िया है, क्योंकि स्वामी जानते हैं कि क्या होने वाला है। फिर मैं थोड़ा पीछे 10 फीट 15 फीट पीछे ड्राइव करने लगा। 3-4 बार ऐसे हुआ। एक बार हम जब कॉलेज से लौट रहे थे और मैंने कहा, स्वामी आप तो सीधे जा रहे हैं, मुझे राइट टर्न करना है, घर राइट साइड में था तो मुझे राइट टर्न करना है, एक बार दर्शन तो दे दो। उस समय भगवान प्रीमियर पद्मिनी में बैठे थे और डॉक्टर पद्मनाभन ड्राइव कर रहे थे, कर्नल जोगाराव और डॉक्टर रामकृष्णन वो बैठे थे पीछे। पद्मिनी में बीच में बैठे स्वामी, एक तरफ कर्नल जोगाराव अच्छे अट्टे कट्टे थे और दूसरी तरफ डॉक्टर पद्मनाभन के डॉक्टर भगवंतम के बेटे डॉक्टर रामकृष्णन, वो हमारे सेवा दल के कन्वीनर थे, वो बैठे थे। और मैंने कहा, स्वामी एक बार दर्शन दे दो। तो 15 फीट एक क्षण मैंने सोचा और स्वामी मुड़े, एक क्षण का डिफरेंस नहीं, क्योंकि 10 फीट के बाद में मुझे राइट टर्न करना है, एक क्षण का डिफरेंस नहीं। इमीडिएटली स्वामी टर्न बैक, आई टू आई कॉन्टैक्ट, मुस्कुराए और तब तक तो गाड़ी निकल गई। तो इतना दिया है, इतना दिया है, मतलब इंस्टेंट सोचो और स्वामी हाजिर है। ये सब कैसे हुआ और क्या हुआ, ये जब मैं अब बैठकर सोचता हूं, देखो उस समय सोचने की
शक्ति नहीं थी, क्योंकि जब हम फिजिकली स्वामी के साथ होते हैं तो माया जबरदस्त होती है, हम फिजिकली रहते हैं, ये सोच नहीं पाते कि हम किससे बात कर रहे हैं, हम किसके साथ हैं। मैं स्वामी के साथ हूं, स्वामी फ्रेंडली हो गए थे, इतना फ्रेंडली हो गए जैसे अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, दोस्त से मिल रहे हैं, दोस्त से हंसी मजाक कर रहे हैं, वैसे बात करते थे। तो ये सोचना कि मैं भगवान के साथ खड़ा हूं, भगवान के साथ बात कर रहा हूं, ये विचार आते ही नहीं थे। ये सब तो जब रिटायर हो गए आराम से बैठकर अब सोचते हैं, एक एक शब्द का याद करते हैं। ये आपने जो मौका दिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज मुझे वापस अपने पुराने समय में जाने का मौका मिला, है ना। वो गोल्डन डेज जो मेरे जिंदगी के 74 से 88 तक, बाद में तो फिर डब्बे में डाल दिया मुझे, कचरे के डब्बे में। मैंने एक बार स्वामी से पूछा, 96 में पूछा स्वामी से कि स्वामी 8 साल हो गए इंटरव्यू दिए हुए। तो स्वामी ने जस्ट घूर कर देखा, आंखें फाड़ कर घूर कर देखा और चले गए, कुछ नहीं कहा, कुछ बोले नहीं। नेक्स्ट डे उसी जगह पर बैठा था और एक भाई पास में बैठे थे, उन्होंने पूछा स्वामी इंटरव्यू। मैंने नहीं पूछा, मेरी हिम्मत नहीं हुई, पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि जैसे घूर कर देखा मैं डर गया था, पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। उन्होंने पूछा स्वामी इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा, पूछा, मेरी तरफ देखकर घूर कर कह रहे हैं इंटरव्यू, ऐसे हाथ करके कहा इंटरव्यू कब पूछोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। इंटरव्यू कब पूछोगे। शायद काफी लोगों ने यहां पर सुना नहीं होगा कि कभी किसी को स्वामी ने ऐसा कहा कि इंटरव्यू कब पूछोगे। मेरे लिए तो उस समय तो इतना ध्यान नहीं दिया, पर 11-12 के बाद में, 2012 के बाद में, अब मैं रिटायर्ड हूं और बस यही काम करता रहता हूं। कभी जैन शास्त्र पढ़ता हूं, कभी स्वामी के स्पीच सुनता हूं, और एक एक शब्दों को लेकर, एक एक अर्थ को लेकर गहराई में, तो अब याद आता है कि इंटरव्यू, और फिर याद आता है कि स्वामी ने कितनी बार कहा कि जो मैं देने के लिए आया हूं वो तो कोई मांगते ही नहीं है, जो मैं देने के लिए आया हूं वो तो कोई मांगते ही नहीं है। और वास्तव में मैं भी उस समय, मतलब बोल रहा हूं ना, फिजिकली जब हम स्वामी के साथ होते हैं ना, आई हैव हर्ड, जब स्वामी की मीटिंग चल रही है, ट्रस्टीज मेंबर बैठे हैं, ट्रस्ट मेंबर्स बैठे हैं और स्वामी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, मैं बाहर खड़ा हूं और सुन रहा हूं। स्वामी कह रहे हैं कुछ और ट्रस्ट मेंबर, नहीं स्वामी ऐसा नहीं, ऐसा करें। तो मैं बाहर खड़ा, देखो बाहर जब खड़ा हूं तो आई एम अवेयर, तो सोच रहा हूं कि स्वामी को ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई इनकी। देखो मेरे थॉट लेवल कहां पहुंचता है कि स्वामी को ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई। स्वामी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं नहीं स्वामी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। पर जब मैं खुद सामने होता हूं तो फिर वही हालत बनती है। तब मुझे याद आता है कि यस, स्वामी की माया है ये। हम स्वामी के सामने जब होते हैं ना तो भूल जाते हैं कि हम भगवान के साथ बात कर रहे हैं। कौन है ये? हम बस अपने मित्र हैं, फ्रेंड है, पिता है, माता है, जो भी हम मान रहे हैं, पति है, पत्नी है, कुछ भी मान सकते हैं हम। ऐसे व्यवहार होता था। फिर कॉलेज, शादी, बर्बादी, जिसे मैं लोगों को, बच्चों को ये कहता था कि शादी बर्बादी है। इसलिए जब अब हम डीपली गहराई में उतरते हैं, सोचते हैं, इसलिए कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हमारे स्वामी ने कहा है 2 हाथ 2 पैर 4, फिर 4 से 8 हुए, 4 तक तो हम 2 पैर वाले तो मनुष्य हैं, 4 पैर वाले फिर 8-10 पैर बारे, 8-10 पैर, 12 पैर, 18 पैर, है ना। स्वामी ने कहा है कि 2 पैर, 4 पैर, 8-10, 12, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और चारों पैर साथ चले, भगवान की कृपा है। स्वामी ने मेरे लिए ऐसे श्रीमती जी को ढूंढा, वो भी एक कहानी है। अब तो सब कहानी ही लगती है,
कि कैसे श्रीमती जी हमारे जीवन में आए। जब स्वामी को कार्ड दिया मैंने कि स्वामी शादी है, तो स्वामी ने कहा शादी कहाँ पर है? मैंने कहा स्वामी राजस्थान में है, आपको आना है। मैं कैसे आ सकता हूँ, यहाँ पर हूँ, राजस्थान कितना दूर है, मैं नहीं आ सकता। उसमें थॉट नहीं आया कि स्वामी के लिए क्या इम्पॉसिबल है, उसमें विचार नहीं आया। कार्ड दिया, स्वामी का ठीक है, कब जा रहे हो? मैंने कहा स्वामी नेक्स्ट थर्सडे शाम को निकलना है। तो कहा ठीक है, सुबह आ जाओ। पहुंच गया सुबह, 77 की बात है ये। सुबह थर्सडे हम कभी जाते नहीं थे, हम तो संडे वाले थे, संडे पहुंचते थे। थर्सडे पहुंच गया उस दिन, तो रामकृष्णन हमारे डॉक्टर रामकृष्णन थे सेवादल कन्वेनर, उनसे कहा मैंने स्वामी ने बुलाया है, तो अंदर छोड़ दिया मुझे पोर्टिको तक। पोर्टिको में खड़े हो गए, स्वामी आए, दर्शन करने के लिए आए, मुस्कुराए और चल दिए। फिर वापस आए, फिर मुस्कुराए और अंदर चले गए। कुछ बात नहीं की, अंदर चले गए। अंदर चले गए, थोड़ी देर बातें की, कोई आया कोई गया, फिर स्वामी ऊपर चले गए। मैंने कहा ये क्या है? मेरे लिए तो क्वेश्चन खड़ा हो गया। उनका शाम को मुझे निकलना है, स्वामी ने बुलाया है और स्वामी खुद ऊपर चले गए। अब ऊपर जाने के बाद में स्वामी वापस शाम को ही आते थे नीचे, और जहां तक मुझे मालूम है बहुत बहुत कम लोगों को ऊपर बुलाते थे। डॉक्टर रामकृष्णन हैं, डॉक्टर पद्मनाभन हैं, भगवंतम साहब हैं, कस्तूरी साहब थे, जोगाराव साहब थे, 5-7 आदमी यही ऊपर जा सकते थे। मैं काफ़ी क्लोज हो गया तो मुझे मालूम था अंदर। मैंने कहा गड़बड़ हो गई है, तो मैं तो स्वामी के साथ लड़ने लग गया मन ही मन। मैंने कहा क्या कर रहे हैं स्वामी आप ऊपर चले गए, आपने मुझे बुलाया और 2 मिनट में तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं हम। मन के विचार हमें 2 मिनट में कहाँ से कहाँ लेकर चले जाते हैं। कितना भयंकर समय था वो 2 मिनट का। और फिर रामकृष्ण साहब नीचे आए, सुरेश बुला रहे हैं ऊपर। ओह, 1 सेकंड में वापस पूरा वातावरण बदल गया, ऊपर भागा। स्वामी ने कहा ताली बांधते हैं, आपके यहाँ पर ताली का रिवाज है? मैंने कहा स्वामी आप कहेंगे तो बांध लेंगे। फिर स्वामी ने हाथ घुमाया, ताली दी, फिर अंदर गए, एक साड़ी, एक सफारी का कपड़ा लेकर आए और स्वामी का ये सफारी पहनकर शादी करना, और वाइफ को बोलता ना ये साड़ी पहने। ठीक, बस खुशी खुशी वापस नीचे आए, भागे, क्योंकि फिर दूसरा काम भी को बहुत था, शाम को निकलना था। मात्र हमारे रामकृष्ण साहब खुश हुए, उन्होंने कहा दे दिया, खुश हो गए, भागो। ऐसी एक घटना हुई, शादी के पहले की बात है। समर कोर्स के समय हम गेट ड्यूटी पर कर रहे थे, मैं और नरोत्तम कीर्ति रावल थे। 75-76 की बात है ये। समर कोर्स चल रहा था, 3-4 दिन वहीं पर रहते थे हम। एक बार 3-4 दिन के बाद भी घर पे आते थे, क्योंकि उस समय कॉलेज हो गई थी, तो दूसरा कुछ काम था नहीं विशेष। तो शाम को रुक गया था मैं वहां पर। 5:30 नहीं 7:30 के आसपास एक भाई साड़ी पहनकर, एक भाई फॉरेनर साड़ी पहनकर घूंघट निकालकर आए और हाथ में कुछ था, बैग वैग, अंदर चले गए। हम गेट पर थे, हमने सोचा कि राजमाता के यहाँ से पास में ही, वृंदावन में पास में ही राजमाता का घर है, तो वहाँ से कुछ वो भेजते रहते थे स्वामी के लिए। तो हमने सोचा कि, और घूंघट निकाल कर आ रही है, तो क्योंकि वो ग्वालियर की राजमाता थी, वहाँ पर घूंघट की प्रथा थी, तो हमने सोचा कि वहाँ से कोई आए हैं, हमने अलाउ कर दिया। और वो भाई अंदर जाकर, और 2 मिनट पहले ही स्वामी ऊपर गए हुए थे, ऊपर चले गए थे स्वामी। 2 या 5 मिनट पहले ही स्वामी ऊपर चले गए थे। और वो भाई साहब आकर स्वामी की चेयर के पास बैठ गए और चिल्लाए जोर से, स्वामी मुझे आपसे बात करनी है, इन इंग्लिश। स्वामी आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। तो राम ब्रह्म साहब थे उस समय केयर टेकर। ओह, हेल्दी बॉडी, मजेदार आवाज की, आवाज से ही डर लगता था। भाग कर आए वो कि कौन है, और उसको पकड़कर खींच कर लाए गेट पर। कौन थे गेट पर? तुम थे गेट पर। ओह, पहले तो कहा उसको बाहर फेंको। स्वामी ने
राम बब्बू साहब ने कहा कि इसको बाहर फेंको। हमने उनको पकड़ा दोनों ने और उसको बाहर लेकर गए। गेट पर कहा कि इसको, ये आदमी है, बस साड़ी पहन ली है, इसको अलाउ नहीं करना है, राम बब्बू साहब ने कहा है। तो चैप्टर क्लोज हो गया। पर वापस जब आए तब राम बब्बू साहब वहीं पर खड़े थे, गेट पर ही खड़े थे और चिल्लाए, जोर से चिल्लाए, तुम थे दोनों यहाँ पर, क्या करते हो तुम, सोच समझ नहीं सकते। और मैंने कहा अब तो गई हमारी बात। और स्वामी को अगर शिकायत गई, स्वामी को मालूम पड़ा और स्वामी ने कुछ कह दिया तो फिर हमारी गेट ड्यूटी खत्म, फिर हमें गेट पर कभी ड्यूटी नहीं मिलेगी। स्वामी ने एक शब्द नहीं कहा। इतना हो हल्ला हुआ अंदर स्वामी के रूम के नीचे ही, तो वो चिल्लाए थे। और 2 मिनट 5 मिनट ही हुए थे स्वामी ऊपर गए हुए। फिर वापस राम बब्बू साहब ने कहा, सब घटना स्वामी को मालूम है, ऐसा नहीं कि स्वामी को फिजिकली मालूम है, मतलब वो स्वामी को मालूम है वो अलग बात है, फिजिकली स्वामी को मालूम है, मैं जानता हूं कि स्वामी को राम बब्बू साहब ने 100% कहा होगा, क्योंकि राम बब्बू साहब कहाँ पर आवाज़ हो रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, पूरी रिपोर्ट स्वामी को देते थे। कहीं पर कुछ वृंदावन में आवाज़ हो जाए, कहीं पर कुछ घटना हो जाए, तो पूरी रिपोर्ट स्वामी तक फिजिकली पहुंचती थी। उसके बाद में तो स्वामी राम बब्बू साहब बहुत फ्रेंडली हो गए। फिर तो कभी 9:30 बजे स्वामी जब ऊपर चले जाते तो बुलाते, नाश्ता किया है, उनका स्वामी नाश्ता करना है, राम बब्बू साहब नाश्ता करना है, तो चलो अंदर चलो। फिर अंदर स्वामी का जो नीचे किचन थी वहाँ पर नाश्ता करते, कई बार खाना खाया वहाँ पर, बहुत चांसेस दिए। राम बब्बू इतने फ्रेंडली हो गए। फिर जब घटना मालूम पड़ी कि तो फॉरेनर है और इसके लिए, मतलब इस राजमाता के हिसाब से हमने अंदर कर लिया, तो राम बब्बू साहब ने कुछ नहीं कहा। फिर शादी 77 में शादी हुई। स्वामी ने कहा कि जैसे ही यहाँ पर आओ परती आना। स्वामी को मालूम था कि जब मैं बेंगलोर आऊँगा, शादी करने के बाद में जब मैं बेंगलोर आऊँगा तो वो परती में होंगे, है ना। तो उन्होंने कहा परती में आना। हम पहुँचे, करीब 5:30 बजे हम पहुँचे वहाँ पर। सुबह मैं 6:15 बजे तक लाइन में लग गया था, ड्रेस चेंज की और पहुँच गए वहाँ पर। इनसे कहा ये पहली बार परती के दर्शन किए थे, अभी तक स्वामी के दर्शन नहीं हुए थे, परती के दर्शन हुए थे। तो इनको कहा मैंने कि देखो यहाँ पर तैयार हो जाओ। वो शेड था वहाँ पर, गणेश मंदिर के पास में जो शेड था वहाँ पर, शेड में ही रुके थे हम। और इनको कहा कि तैयार हो गओ और स्वामी ने जो साड़ी दी है वो साड़ी पहनकर वहाँ पर आ जाना, मैं आपको बुलाऊंगा तब आ जाना। मुझे विश्वास था कि आज बुलाएंगे, 100% बुलाएंगे, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता था। सुबह पहुंचना मैं, इंटरव्यू लेता और शाम तक बेंगलोर, या दूसरे दिन सुबह तक बेंगलोर, 100%, एक ही दिन रुकता था। और हमेशा जब भी 74 से 79, 80 तक तो ऐसा चला। फिर 80 के बाद में थोड़ा कम हुआ, 80 से 88 थोड़ा कम हुआ, और 88 के बाद में तो इंटरव्यू खत्म हो गए। फिर भी हम बातें कर रहे थे नरोत्तम कीर्ति के साथ, तो उन्होंने कहा कि एक बार तुझे कॉलेज में ले लिया, अब तू बॉटल में उतर गया। हमारी भाषा ऐसी थी, अब तू बॉटल में स्वामी ने तुझे बॉटल में उतार दिया, अब नो इंटरव्यूज, इसकी इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है, अब तू भाग नहीं सकता कहीं पर। 7 बजे स्वामी आए और बुलाया, 7:30 बजे हम इंटरव्यू रूम में थे। स्वामी ने, ये पहली बार दर्शन हुए इनके, तो कौन है भाई, हम जैन, इनके परिवार वाले आर्डेंट डिवोटीज ऑफ जैनिज्म, तो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, अवतार में विश्वास नहीं करते हैं जैनिज्म वाले, हम खुद भगवान बने इसमें विश्वास करते हैं। पर यह बात स्वामी ने भी कही है, स्वामी ने बहुत क्लियर कहा है कि आई एम द गॉड, यू आर ऑल्सो द गॉड, आई नो दैट आई एम द गॉड एंड यू डोंट नो दैट यू आर द गॉड। कितना बिल्कुल सिंपल चीज है। हमारे जैनों में कहते हैं अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जैनों में कहा गया है आत्मा ही परमात्मा है, और स्वामी ने कहा बिल्कुल वही बात इंग्लिश में कही, आई एम द गॉड, यू आर ऑल्सो द गॉड, जोड़ दिया वहां पर द गॉड, आई नो दैट आई एम द गॉड एंड यू डोंट नो दैट यू आर द गॉड। कितनी
पूरा आध्यात्मिकता का सार इसमें आ गया और कुछ करना ही नहीं है। वी हैव टू जस्ट नो दैट वी आर द गॉड। स्वामी को इतनी अच्छी तरह से जैसे मैं करता हूं वैसे उस भाव से, उस प्रेम से इन्होंने शायद नमस्कार नहीं किया होगा। पहली बार देखा, इतने बड़े बड़े बाल कौन हैं? तो स्वामी ने कहा तुम महावीर को मानती हो ना, महावीर को मानती हो ना, इतना कहा। और फिर ये भी, और अब तो मेरे से 2 कदम आगे हैं। ऐसे भी लेडीज फर्स्ट, तो आगे ही रहते हैं। फिर इंटरव्यू दिया, बातें की। अब आधा घंटा कैसे निकला? आधे घंटे में तो दूसरे ग्रुप भी थे, दूसरे भी 2-3 ग्रुप और थे, उनको भी बुलाया अंदर, बातें हुई। फिर 3-4 बार ऐसे इंटरव्यू मिले। एक बार हम जब शाम को दोपहर को पहुंच गए थे, शाम को किचन के बाहर से निकल रहे थे दोनों, तो लड्डू की सुगंध आई अंदर से। तो मैंने इनसे पूछा कि लड्डू खाओगे क्या? लड्डू तो लेके आऊं मैं, अगर आपको खाने की इच्छा है तो लेकर आऊं मैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, तेल के लड्डू हैं, यहां पर तेल के लड्डू बनते हैं, नहीं खाना है। मारवाड़ी जनरली तेल के मिठाइयाँ पसंद नहीं करते हैं, घी की मिठाइयाँ बनती है। तो नेक्स्ट डे इंटरव्यू में थे हम। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, देखो ये 4-5 बजे की बात है, लंच और डिनर हम वहाँ पर किचन में नहीं ले सकते थे, क्योंकि हर चीज़ में जमीकंद, बीटरूट्स ये सब बनते थे, हम नहीं खाते हैं। प्याज, जो भी ज़मीन के अंदर बनता है, जो भी जमीन फ्रूट्स ज़मीन के अंदर है, वो चीज़ हम प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो उसके हिसाब से वहाँ पर खाना, अगर कभी खाना भी पड़ता तो दही और चावल। 4-5 दिन रुक भी गए तो दही और चावल से ही हमारा समय निकलता था। स्वामी ने नेक्स्ट डे बुलाया अंदर, और अंदर जाते ही सब बैठे और हाथ घुमाया, इतना बड़ा लड्डू निकाला, इतना बड़ा लड्डू निकाला। इनकी तरफ देखा, प्योर घी, ऑयल नहीं है, प्योर घी। देखो कल शाम को हम बात कर रहे थे कि तेल के लड्डू नहीं खाने हैं, और आज इंटरव्यू रूम में स्वामी बोल रहे हैं कि प्योर घी का लड्डू है। इनको दिया, थोड़ा बहुत मुझे भी मिला और सबको भी दिया। इनको ज्यादा पोर्शन दिया, मुझे मालूम है, जबकि मिठाइयां मैं पसंद करता हूं, है ना। फिर स्वामी ने पक्षपात किया, वहां पर इनको बोतल में उतारना था। बहुत ये ऐसी घटनाएं 4-5 बार हो गई इनके साथ में, तो फिर नेचुरली विश्वास हो ही जाता, श्रद्धा बढ़ जाती है। फिर तो श्रद्धा हो गई। ऐसी 2-4 घटनाएं और हुई जहां पर मतलब इंस्टेंट आंसर, आज बात करो, कल स्वामी उत्तर के साथ तैयार खड़े हैं। लड्डू वाली बात बहुत बड़ी जबरदस्त थी। जब हम एक दिन होली के दिन सुबह जा रहे थे हम, उस समय मेरे पास 2 व्हीलर था, और वो भी टीवीएस छोटा वाला। व्हाइटफील्ड जा रहे थे, इनकी साड़ी पीछे अटक गई, और सेठानी जी, हमारी सेठानी जी नीचे रोड पर, साड़ी अटक गई तो खींच लिया और गिर गया नीचे। व्हाइटफील्ड के जस्ट थोड़े 200-150 मीटर पहले फिर हम व्हाइटफील्ड पहुंचे। वहां पर एलेम्बिक का हॉस्पिटल था, एलेम्बिक वालों का, एलेम्बिक कंपनी है वहां पर तो मेहता जी वहां पर जान पहचान वाले थे, उनके घर पे गए, साड़ी चेंज की, थोड़ी खरोचें आई थी, खून आ गया था, थोड़ा जो भी फर्स्ट एड करना था किया, और पहुंच गए, वृंदावन पहुंच गए। मैंने इनको बिठाया, मैंने कहा यहाँ पर बैठो, मैं भागता हूं अंदर, क्योंकि फिर कोई दूसरा आ जाएगा तो गेट ड्यूटी चली जाएगी। होली का दिन था, मैं पहुंच गया वहां पर, और 5-10 मिनट के गैप में स्वामी आ गए। स्वामी मुस्कुराए और चले गए, सीधे इनके पास गए।
कितनी बार कहा है इसको, धीरे चला, सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। इतना कहा ठीक हो जाएगा सब कुछ, चले गए। फिर वापस आते वक्त एक गुलाब का फूल लेकर आ रहे थे, किसी ने दिया होगा, किसी भाई या बहन ने फूल दिया, वो फूल लेकर आ रहे थे। मैं अपने सफ़ेद कपड़ों में सज धज कर खड़ा था वहाँ पर, और स्वामी ने वो फूल फेंका ऐसे ऐसे, तो फूल में गुलाल थी। देखो, फूल में किसी भाई ने या बहन ने गुलाल डालकर फूल दिया था, और वो फूल स्वामी के हाथ में था। दर्शन लाइन से यहाँ तक लेकर आए, गेट तक, और फिर मेरे पास आकर फूल फेंका दूर से। अगर ऐसे हाथ में देते तो गुलाल मेरे कपड़ों पर नहीं लगती। दूर से वो गुलाब का फूल फेंका तो पूरी गुलाल मेरे नीचे से ऊपर तक, पैंट और शर्ट दोनों गुलाल से भर गए। स्वामी मुस्कुराए और चले गए। होली ऐसे खेली स्वामी ने। तो ऐसी घटनाएं एक एक क्षण हमारे साथ में हैं, ऐसा लगता था। मुद्दनहल्ली जा रहे थे एक बार, स्वामी मुद्दनहल्ली में जो मुख्य स्वामी का मंदिर था, वो ओपनिंग के लिए स्वामी गए। तो मैं भी वहाँ से पीछे टू व्हीलर, उस समय मोटर बाइक थी, इनको लेकर मोटर बाइक में स्वामी के पीछे पीछे दौड़े। पहुंच गए वहां पर। स्वामी ने कहा, यहां पर भी अटक गया, पीछा नहीं छोड़ेगा, यहां पर भी आ गया। मतलब इंस्टेंट पीछे पीछे चले गए ना, 2 मिनट का फर्क। इतनी फास्ट चलाता था मैं मोटर बाइक। फिर एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ रात को करीब 7 बजे 8 बजे, उस समय हमारे पास ये आईडी कार्ड या सब कुछ नहीं होते थे जेब में, एड्रेस वेड्रेस कुछ नहीं था, न मोबाइल था, न गाड़ी में कुछ पेपर थे कि मालूम पड़ सके। तो सुबह 4 बजे तक मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहा। मतलब पुलिस वाले आए, क्योंकि मालूम नहीं कि कौन है ये। 7-8 बजे एक्सीडेंट हुआ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 7-8 बजे एक्सीडेंट हुआ। मैं बेहोश था, कुछ बोलने लायक नहीं थी मेरी स्थिति, बेहोश था मैं। और करीब सुबह 4 बजे पिताजी और बड़े भाई आए, ढूंढते 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 करीब 11 बजे तक, 10 साढ़े 10 11 बजे तक वेट किया। फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तब 4 बजे मुझे मेरे पास आए और फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 7-8 दिन तक इस अस्पताल में इलाज चला। फिर नेक्स्ट डे जब मैं घर पे आ गया तो कीर्ति आया और बोला, स्वामी यहाँ पर हैं, कल चलते हैं संडे। तो डैडी मम्मी मैं और ये, उसमें बेटा भी था साथ में, आए। स्वामी आए, पिताजी से कहते हैं, मैंने बचाया इसको, मैंने बचाया इसको, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मतलब 4-5 दिन तो मेरी याददाश्त बिल्कुल चली गई थी। हॉस्पिटल से मैं कब घर आया, कब मुझे एडमिशन मिला और कब मैं वापस घर पहुंचा, मुझे याद नहीं है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी याद नहीं है। तो स्वामी ने कहा, मैंने बचाया इसको, मैंने बचाया इसको। फिर नेक्स्ट संडे वापस गए तो स्वामी ने बुलाया, अब तू गाड़ी नहीं चलाएगा, अब तू गाड़ी नहीं चलाएगा। मैंने कहा, स्वामी हालत खराब हो जाएगी। ऑटो वाले से पूछो, बात करो, पैसे के बारे में बात करो, क्योंकि वहाँ पर मीटर नहीं चलते थे उस समय, और मीटर होते तो भी मीटर लगाते नहीं थे। ये हेडेक है, उनसे बात करना और उनको समझाना। या मैंने कहा, स्वामी बहुत हेडेक है। स्वामी का चुप, नहीं चलाएगा। 2 महीने तक मुझे अच्छा सबक सिखाया और बाद में कहा, आप धीमे धीमे चलाएगा। डैड 2 महीने बिना गाड़ी के रहा, फिर कहा अब बिल्कुल धीमे धीमे चलाएगा। तो लेसन तो मिला। फिर 74 से 84 तक तो बहुत आनंद लिए फिजिकली, मतलब पूरे फिजिकल वर्ल्ड में थे। कोई आध्यात्मिक बात नहीं, कोई बहन की शादी थी, हम बहुत ही मिडिल क्लास और पुअर मिडिल क्लास में थे। शादी के लिए पिताजी ने कहा कि करीब 40,000 रुपये चाहिए, 40,000 ओनली। वो भी हमारे पास अरेंजमेंट नहीं था। मैंने स्वामी से कहा, स्वामी बहन की शादी है
और 30-40 हज़ार रुपये चाहिए, कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। स्वामी ने सुना अनसुना कर दिया, 2 बार कहा, 3 बार कहा, चौथी बार स्वामी ने कहा कि जब तू ही मेरा है तो तू चिंता क्यों करता है। स्वामी थक गए शायद सुनते सुनते, तो स्वामी को बोलना पड़ा कि जब तू ही मेरा है तो चिंता क्यों करता है। और देखिए 2 दिन बाद में एक बड़ा ऑर्डर आया कुन्नूर से, ऊटी के पास कुन्नूर है, वहां से एक बड़ा ऑर्डर आया और एग्जैक्टली 30-35,000 का ऑर्डर था। हमने फटाफट माल रेडी कराया और उसको भेज दिया। 3-4 दिन में माल भेज दिया उसको और एक लेटर लिखा कि भाई साहब हमारी बहन की शादी है, अगर आप ये पैसे भेज देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और सप्ताह भर में पूरा काम हो गया, पैसे भी आ गए, ड्राफ्ट भी आ गया और एक पैसा नहीं काटा। बिजनेसमैन कोई भी जब पेमेंट करेंगे तो अगर प्रीपोन हो रहा है पेमेंट तो नेचुरली वो कैश डिस्काउंट या जो भी है, एक पैसा कट नहीं किया, एक पैसा नहीं काटा। उनको मैंने धन्यवाद से लिखा लेटर, उसमें फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, ये 78 की बात है। तो एक एक कदम पर एक बार ऐसी बात चली पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में, तो स्वामी ने कहा तेरा हाथ हमेशा ऐसा रहेगा, तेरा हाथ हमेशा ऐसा रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा। इतना मतलब स्वामी ने ध्यान किया हमारे लिए। एक एक क्षण ऐसा लगता था कि स्वामी जैसे हमारे लिए ही आए हैं। जब मैं बीए में था तो भगवान से कंप्लेन कर, उस समय स्वामी के बारे में मालूम नहीं था मुझे, नहीं तो स्वामी से कंप्लेन करता, भगवान से कंप्लेन करता था मैं, स्वामी भगवान अगर आप हैं तो अब आइए, हम कितनी तकलीफ में हैं यहां पर। गार्डन में एक बार सो रहा था मैं जयनगर में, एक रोड के पास में जो साउथर्न सर्कल से रोड निकलती है, वो दोनों तरफ बहुत, जेपी नगर जाने के लिए जब वो रोड है तो दोनों तरफ करीब 40-50 फीट के गार्डन है। वहाँ पर एक बार शाम को मैं सो रहा नहीं मतलब गया और सो गया, और फिर सोचा मैं भगवान अगर आप अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे, हम इतनी तकलीफ में हैं, हम इतने कष्ट में हैं, इतनी तकलीफें उठा रहे हैं और आप कब संभालेंगे हमें। दैट वाज द कंप्लेन। और बाद में फिर स्वामी आए, फिजिकली वर्ल्ड में आ गए, हम खूब आनंद लिया। 88 में, इसके बीच में 84 में गुप्ता सर चले गए, डॉक्टर गुप्ता जो हिंदी पढ़ा रहे थे वो चले गए। फिर नरोत्तम कीर्ति रावल तो ऑलरेडी वेट कर रहे थे, वो आ गए यहाँ पर, वो भी क्लासमेट था मेरा, तो और चांस नहीं था। मैंने सोचा कि अब तो मेरा चांस गया, क्योंकि वो स्वामी के डिवोटी हैं पहले ही, उनके दादाजी वहाँ पर थे, उनके परिवार में स्वामी आते जाते थे। उनका घर चामराजपेट में था पहले, फिर जयनगर में शिफ्ट हुए, तो चामराजपेट में तो बहुत बार उनके घर आए थे। तो मैंने कहा अब तो मेरा लाइफ टाइम चांस नहीं है। पर 88 में वो बहुत जॉली आदमी था, ही इज नो मोर। मस्ती में कभी ईयरफोन लगा दिया और भजन सुन रहा है, वृंदावन में बैठा है, आगे भजन में बैठा है और ईयरफोन लगाकर भजन सुन रहा, अपने मस्ती में सुन रहा हो। तो फिर कुछ ऑफिशियली बातें हुई कि ये बहुत ज़्यादा, तो उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं रहना है और रिजाइन कर दिया। और उसी दिन मुझे आकर कहा कि सुरेश मैंने रिजाइन कर दिया है, कल सुबह तू पहुंच जा। जब उसने रिजाइन कर दिया तो उसने आकर मुझे कहा कि सुरेश तू जा। और मैं पहुंचा वहाँ पर। 88 में स्वामी को कहा कि स्वामी नरोत्तम कीर्ति रावल ने हिंदी टीचर का रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अब मैं आ सकता हूँ, तो तू मेरे बच्चों को पढ़ाएगा, बिगाड़ देगा। ये सेंटेंस थे स्वामी के। सुबह सब बिगड़ गए। स्वामी ने कहा बिगाड़ देगा। फिर मैंने उसमें तो मजाक में ले लिया, फिर बाद में सोचा कि देखो हमारी जो आज की हिंदी है और उस समय के जो मेरा प्रोनाउंसिएशन था बहुत फर्क था। वो मारवाड़ी टोन
है ना। और बच्चे कभी फूल और फूल में कभी हमारी टांग भी खींचा करते थे। जब मैं क्लास में कभी बोलता तो फूल और फुल में गड़बड़ी हो जाती थी, तो बच्चे वो 88, 89 के सेशन में बहुत चला, 89, 92 तक चला। फिर तो मैंने अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर दिया कि अब मुझे केयरफुली बोलना है, नहीं तो ये। इसलिए स्वामी ने कहा था कि तू मेरे बच्चों को बिगाड़ देगा। स्वामी ने कहा ठीक है, शाम को हिंदी में बात कर। दैट वाज द इंटरव्यू। नरेंद्र सर हॉस्पिटल में नहीं, घर में ही थे, पर ही वॉज नॉट वेल टू कम टू वृंदावन। तो नरेंद्र सर से मैंने कहा, जाकर उनके घर में जाकर कहा कि नरोत्तम कीर्ति ने रेजिग्नेशन दे दिया है, आप कुछ कहिए। उस समय महाजन सर थे प्रिंसिपल, आप कहिए, क्योंकि वो सब जानते थे मेरी हिस्ट्री। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है आप। स्वामी ने मुझे ऐसे कहा कि शाम को हिंदी में बात कर। तो कहा हो गया ना फिर तेरा, और कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। और हो गया, शाम को हिंदी में बात की वृंदावन के अंदर त्रय में। और फिर स्वामी ने कहा ठीक है, महाजन सर को बोल दिया कि कल से ये ज्वाइन करो। दैट वाज द इंटरव्यू। पूछा ही नहीं कि मैंने एमए हिंदी की है, कोई सर्टिफिकेट नहीं। जो मैंने कहा वो मान लिया गया। ऑफिशियली पेपर वर्क हुआ ही नहीं। और कॉलेज में 88 में फिर तो अनिल सर आए, फिर ये घटना हुई। एक बार मैं कॉलेज में जब पढ़ाता था, बच्चे सब जानते हैं, अभी भी वही बात चल रही थी। हिंदी ऐसे भी धार्मिकता से भरी हुई है। हिंदी जब पढ़ेंगे हम तो कबीर के दोहे हो या कहानियां हो, सब आध्यात्मिकता से भरी पड़ी है। तो जब बात चलती, एक दोहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। फिर स्वामी की बातें, परिवार की बातें सब चलती। तो एक दिन मैं सोच रहा था, 92 के आसपास की बात है, मैंने कहा इतने साल हो गए हैं, मुझे कहीं किसी ने अगर बच्चों ने कंप्लेन कर ली कि तुम पढ़ाते कम हो और स्वामी के बारे में बात ज़्यादा करते हो, अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो शिकायत अगर स्वामी तक पहुंचे तो गड़बड़ हो सकती है। मैं जब कॉलेज से घर जा रहा था तो ये थॉट आया मेरे मन में। और नेक्स्ट डे महाजन सर ने बुलाया। जब मैं कॉलेज आया, मैं कॉलेज में जाता था अपनी क्लासों के लिए, आई वॉज नॉट फुल टाइम। अपनी क्लास जब होती थी तब पहुंचता और क्लास होने के बाद में वापस घर चला जाता। और 99% हमेशा दोनों क्लासेस साथ साथ होती थी, 3 भी हो तो भी साथ साथ होती थी। ऐसा अरेंजमेंट महाजन सर ने कर दिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब पहुंचे कॉलेज तो महाजन सर ने कहा कि सुरेश, जाने के पहले मुझसे मिलकर जाना। और ऑलरेडी थॉट मन में था, कल ही मैं सोच रहा था कि अगर किसी ने कंप्लेन कर ली, शिकायत कर ली, स्वामी के पास पहुंच गई बातें, तो धक्का देकर बाहर नहीं निकाल दें यहाँ से। और जब मैं क्लास खत्म करके गया महाजन सर के पास, तो महाजन सर ने कहा कि सुरेश, कल 3 बजे 4 बजे स्वामी जब आए थे तो वृंदावन के पर्ति के टीचर्स को ग्रुप इंटरव्यू दिया अंदर अपने भजन हॉल में। और सबसे कह रहे थे कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, बिना स्वामी के टीचिंग के साथ में जोड़कर नहीं पढ़ाना है। जो भी पढ़ाओ स्वामी के टीचिंग जोड़कर पढ़ाओ। मैंने कहा मजा आ गया। स्वामी ने ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी, है ना, कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, नो प्रॉब्लम। फिर तो और जोश आ गया, है ना। मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं। अब कल मैं शाम को सोच रहा था और आज सुबह, और वहीं पर उसी समय बात चल रही है पर्ति में। उसी समय स्वामी ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि जो कुछ भी पढ़ा रहे हो, सब टीचर से कह रहे हैं कि जो कुछ भी पढ़ा रहे हो स्वामी के टीचिंग जोड़कर पढ़ाओ। अब मैथ्स पढ़ानी है तो 1 और 1 11 बन जाते हैं, है ना। 1 और 1 हंसेंगे आप, 1 और 1 11 बन जाते हैं। आपने कभी अनुभव किया कि जब हम अंधेरे में अकेले चल रहे होते हैं और डर लगता है, छायाओं से भी डर लगता है, छाया कभी हिल रही है, कहीं छाया हिल रही है तो लगता है कि भूत आ गया। अगर वहां पर एक और कोई भय आ जाए, एक से एक
दो नहीं होते हैं, एक से एक 11 हो जाते हैं। आध्यात्मिकता में एक से एक और एक 11 हो जाते हैं, इतनी हिम्मत बढ़ जाती है। तो मैंने कहा ये है मैथ्स में, क्योंकि बच्चों ने कभी पूछा तो ये थॉट आया, तो मैंने कहा देखो ऐसे पढ़ा सकते हैं। मैथ्स में, साइंस में, जहां पर साइंस खत्म होती है आध्यात्मिकता शुरू होती है, स्वामी ने कहा। जहां पर साइंस खत्म होती है वहां पर आध्यात्मिकता, आत्मा के विचार शुरू होते हैं। स्वामी ने कहा कि हमारे मन की शक्ति, शरीर की शक्ति और आत्मा की शक्ति कितनी है। तो एक बार स्वामी कह रहे थे कि आप जूह पर चले जाइए, जूह पर चले जाइए और एक मुट्ठी रेत उठाइए, एक मुट्ठी से एक कण निकालिए, एक मुट्ठी रेत से एक कण निकालिए। एक कण कितना मुश्किल होगा उठाना, अलग करना। दैट इज योर फिजिकल पावर, दैट इज योर फिजिकल पावर। एक मुट्ठी जो है वह मन की शक्ति है, एक कण जो है वह आपकी शारीरिक शक्ति है, और जो मुट्ठी में भरी हुई है रेत के कण वो है आपके मानसिक शक्ति। और जो पूरा बीच दिख रहा है, पूरी मिट्टी दिख रही है, वो है आपकी आत्मिक शक्ति। दैट इज योर पावर ऑफ योर आत्मा। हमें इतनी शक्ति है। ये सब थॉट उसमें सुनते थे, बहुत अच्छा कहा स्वामी ने, हाथ जोड़ते, नमस्कार करते और निकल जाते। इस कान से सुनते, कुछ रहता नहीं, रहता भी तो समझते नहीं, समझते तो उसके बारे में चिंतन नहीं करते। ये सब 2012 के बाद में जब बैठकर पढ़ते हैं तो ये थॉट आता है कि स्वामी ने कहा है हमारे पास इतनी शक्ति है, हम उसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। फिजिकल शक्ति तो कुछ भी नहीं है, मानसिक शक्ति। एक बार स्वामी ने कहा कि फिजिकली आपको अमेरिका जाना है तो कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा, है ना। लौटकर दोस्त से मिलकर अगर वापस आना है तो 3-4 दिन लग जाएंगे, 50-60 हज़ार रुपये अप एंड डाउन के, लाख रुपए खर्च हो जाएंगे कम से कम। मुझे नहीं मालूम कि अमेरिका का टिकट कितना है, फ्लाइट कितना चार्जेस करती है, क्योंकि एक जमाने में 20-25 हज़ार रुपये थे। फिजिकली आपको जाना है और आना है तो सप्ताह भर लग जाएगा। मेंटली यू आर देयर, यू जस्ट थिंक एंड यू आर विथ हिम। मेंटली यू जस्ट थिंक ऑफ हिम and you can talk to him. We have the power, the mind power is so much that we can talk to him and he can listen to us. And atmic level you are already there. You are already there. Love all, serve all. अभी मैं बता रहा था कि love all, serve all हम हमेशा सुनते हैं। 1974 से जब से मैं आया तब से सुन रहा हूं। बहुत सिंपल बात है, कितनी बार सुना है, कितनी बार बोला है, पर हम कितना प्यार कर सकते हैं, कितना सर्व कर सकते हैं, हम सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर वो साइंटिफिकली समझें, जब स्वामी ने कहा कि आत्मिक लेवल पे यू आर ऑलरेडी देयर। देखो फिजिकली एवरीवन ऑफ अस इज सेपरेट हियर। फिजिकली जितने भी भाई बहन यहां पर बैठे हैं सब अलग अलग हैं। मेंटली वी आर ऑल वन ग्रुप। थिंकिंग लेवल जो हमारा एक है वहां पर एक ग्रुप बन जाता है। फिजिकली वी आर सेपरेट, मेंटली वी हैव ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग थिंकिंग वाले अलग ग्रुप में जुड़ेंगे। आप अगर इसी लय पर चल रहे हैं, जैसे रेडियो को ट्यून करते हैं ना, तो उस ट्यून पर कहीं पर भी लगाओ वही गाना आएगा। वैसे ही जब हम मेंटली अपने आप को ट्यून करते हैं, तो अगर वो भी उसी ट्यून को लगा रहा है, मैं भी उसी ट्यून को उसी पॉइंट पे लगा रहा हूं, तो दोनों की सोच एक हो जाएगी, वहां पर हम एक हो जाएंगे। और आत्मिक लेवल पर हम एक हैं। तो हम जब किसी को सर्व कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, हम किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं अपनी सहायता कर रहे हैं। फिजिकली वी आर सेपरेट, मेंटली वी आर सेम, एट सेम लेवल ग्रुप, एक ग्रुप अलग अलग लेवल पर अलग अलग है। फिर आत्मिक लेवल पर हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो चींटी की हो, चाहे वो सुरेश की हो, सब आत्माएं एक है।
उस लेवल पर अगर हम ये समझकर अगर सर्व लव ऑल और सर्व ऑल करें तो बहुत आसान हो जाएगा। चाहे वो खराब से खराब है, व्यवहार में बुरा हो सकता है, व्यवहार में हर व्यक्ति अच्छा हो ऐसी कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा संसार नहीं चल सकता। संसार में रहना है, संसार को चलाना है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में रहेंगे तभी प्रकाश होगा। नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव अगर साथ में नहीं होंगे तो लाइट प्रकाश नहीं दे सकेगी। आपके पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो दोनों अलग अलग हैं तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा। दोनों जुड़ेंगे तो ही प्रकाशित हो सकते हैं। तो संसार तो ऐसे ही रहेगा। उसमें रहते हुए हम नेगेटिव को भी उतना ही समझें, उतना ही प्यार करें, उतना ही सर्व करें, तब हम समझेंगे कि हम आत्मिक लेवल पर एक हैं। दैट इज व्हाट स्वामी वांटेड टू गिव अस। फिर स्वामी ने कहा, फिजिकली कहा स्वामी ने कि फिजिकली कहा कि हम सब एक हैं और हमें क्या करना है इसके बारे में स्वामी ने बहुत क्लियर कहा है, बहुत छोटे छोटे शब्दों में। कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस, CIA, स्वामी ने कहा CIA इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका, है ना, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका, सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट CIA। इसको स्वामी ने यहां पर लाया। एक बार मैं लाइन में स्वामी को पेन दे रहा था, पेन खोल कर दिया मैंने, है ना, तो हड़बड़ी होती है ना, पेन मुझसे ले रहे हैं स्वामी तो कितनी खुशी होती है, और खुशी में कोई और न दे दे तो मैं पहले दे दूं, तो पेन दिया मैंने खोलकर, वो पॉइंट जो पेन का पॉइंट था वो स्वामी के हथेली में लग गया, तो मार्क हो गया, इंक लग गई वहां पर। स्वामी ने उस पर जो जिसके भी भाई पर हस्ताक्षर करने थे हस्ताक्षर किया, पेन मुझे लौटाया, हथेली खोलकर दिखाया, देखा CIA, और निकल गए। स्वामी इतना धीमे बोलते थे, इतना धीमे बोलते थे कि पास में जो भाई बैठा वो भी सुन नहीं पाते थे। कई बार ऐसे होता था, और अगर हम अलर्ट न रहें तो हम भी नहीं सुन पाएंगे। फिर नेक्स्ट डे स्वामी ने इसको एलोबरेट किया, CIA, कांस्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस, लगातार इंटीग्रेटेड, सब कुछ मिलाकर हम आत्मिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर और फिजिकल लेवल पर, तीनों को मिलाकर हम अवेयर रहें। स्वामी ने कहा, उदाहरण दिया कि जैसे नल से पानी आ रहा है तो कंटिन्यूस आ रहा है, एक बीच में 1 mm का भी गैप नहीं है। दैट इज व्हाट वी शुड हैव, दैट इज द अवेयरनेस वी शुड हैव, नॉट इवन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारे अवेयरनेस आत्मिक लेवल से फिजिकल लेवल पर आ जाए। दैट इज व्हाट स्वामी वांटेड टू गिव अस, कांस्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस। और जब तक हम इतने अलर्ट नहीं हो जाएंगे, हमारा जीवन संसार में ही चलता रहेगा, हम आत्मा से परमात्मा की राह पर नहीं बढ़ सकते। इतनी इंटीग्रेटेड अवेयरनेस हमें चाहिए। फिर स्वामी कहते थे, थॉट, वर्ड एंड डीड। स्वामी ने कहा कि जो व्यक्ति सोचता कुछ है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, वह है दुरात्मा। स्वामी के शब्द हैं ये। जो कुछ सोचता है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और ही है, हम सब ऐसे हैं। 99.999999999 हम सब ऐसे हैं। हर एक के साथ नहीं हो सकता, हर घटना के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, पर काफी बार ऐसा ही होता है। हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। अब देखो, सुरेश घर पे प्लान बना रहा है कि चलो आज पिक्चर चलते हैं, हम तैयार हो रहे हैं और छोटे भाई साहब आ गए, अरे आओ बैठो, है ना। फिजिकली हम क्या कहेंगे, चलो बैठो चाय पानी पीते हैं बैठकर, और मन में क्या कहेंगे, इसको इस समय आना था, सब प्रोग्राम डिसमिस कर दिया मेरा। बोलते हैं ना, हमारा सबका अनुभव है, मेरा अनुभव है इसलिए मैंने आपको कहा। तो ये ऐसी घटनाएं तो सबके साथ हुई होगी डेफिनेटली, है ना। तो फिजिकली हम कुछ हैं
मेंटली हम कुछ हैं और आत्मिक लेवल पर हम कुछ और ही होते हैं। तो थॉट, वर्ड एंड डीड, हमारे जैनों में कहते हैं वाणी, वर्तन और विचार। वाणी, वर्तन और विचार। वाणी, वर्ड्स, थॉट, और वर्तन, क्रिया जो हम करते हैं, और विचार, थॉट लेवल। वाणी, वर्तन और विचार हमारे अलग अलग होते हैं। तो स्वामी ने कहा कि जिसके वाणी, वर्तन और विचार अलग अलग होते हैं वह तो है दुरात्मा, और जिसके एक है, जो सोचता है वही बोलता है और वही करता है, दैट इज साधु आत्मा। कितनी सिंपल डेफिनेशन है साधु आत्मा और दुरात्मा की। हम अपने आप को कितने आसानी से समझ सकते हैं कि मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर हूं, बोलता कुछ हूं। यहां पर खड़े रहकर बोलना बहुत आसान है ना। उपदेश देना सबसे आसान काम है। स्वामी ने कहा है कि सबसे आसान काम क्या है? लोगों को समझाना, एडवाइस देना, सबसे आसान काम। करना, जो बोलते हैं क्या हम कर पाते हैं और क्या वही सोचते हैं? ऑल द थ्री शुड बी इंटीग्रेटेड, देन ओनली वी कैन मूव टुवर्ड्स गॉड, वी कैन बिकम गॉड। तो स्वामी ने कहा कि आई एम द गॉड, यू आर ऑल्सो द गॉड, आई नो दैट आई एम द गॉड, यू डोंट नो दैट यू आर द गॉड। आज हमें जानना समझना है कि हम भी भगवान बन सकते हैं। बस जानना है, करना कुछ नहीं है। इट्स ए वेरी ग्रेट, क्या कहेंगे साइंस में, क्या बोलते हैं इसको, मैथ्स के जो फॉर्मूले होते हैं ना, फॉर्मूले, इक्वेशंस, है ना। कितना आसान इक्वेशन है। करना कुछ नहीं है, जानना है, मात्र जानना है कि हम भगवान हैं। देखो, अनुभव करेंगे हम, जब हम जानेंगे कि मैं भगवान हूं, तो मेरी वाणी, मेरा वर्तन और मेरे विचार कैसे होने चाहिए। बार बार जब हम अपने आप को याद करेंगे कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप हो जाएगा। हमारे वाणी, हमारे थॉट, वर्ड एंड डीड परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप? मैंने अनुभव किया है, मैं ये महसूस कर सकता हूं कि अगर हम 2 सेकंड भी अगर इस थॉट, वर्ड एंड डीड को एक साथ जोड़कर अलर्ट हो जाएं, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट स्वामी वांटेड अस टू बिकम। स्वामी ने कई बार कहा है ना कि मैं जो देना चाहता हूं वो तो कोई मांगते ही नहीं। दैट इज व्हाट स्वामी वांटेड टू गिव अस, कि यू बिकम गॉड। और हमारे जैनों में कहते हैं कि जब तीर्थंकर बोलते हैं, हम जिनको केवल ज्ञान हो गया है, जिन्होंने भगवान का रूप धारण कर लिया, जो भगवान बन गए हैं, उनके बारे में कहते हैं तीर्थंकर। तो वो कहते हैं कि मैं जब केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूं तो आप सब कर सकते हैं। और वो फ्लो होता है, वो ज्ञान, वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति तीर्थंकर बन जाए, हर व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। एंड दैट इज व्हाट स्वामी आल्सो वांटेड, कि आई एम द गॉड, यू आर आल्सो द गॉड, आई नो दैट आई एम द गॉड एंड यू डोंट नो दैट यू आर द गॉड। तो हम भी उस राह पर आगे बढ़ें। ऐसी में आप सबसे मैं आगे बढ़ूं, सबसे बड़ी प्रार्थना तो वही है कि मैं आगे बढ़ूं, इतना अलर्ट बनूं कि मैं भगवान की कही हुई बातों को अपने आचरण में उतारूं। और वही बात है, पल पल भगवन तेरा ही ध्यान, पल पल भगवन तेरा ही ध्यान, आचरण कर लूं दिया जो ज्ञान। तू मेरा मंदिर है, तू मेरी पूजा है, तू मेरे भावों की धारा को सुन। पल पल भगवन तेरा ही ध्यान, पल पल भगवन तेरा ही ध्यान। ओम श्री साई राम। सर, आपने अभी कुछ देर पहले पूछा था कि बिगड़े क्या। आपके सभी जो स्टूडेंट्स हैं बोलेंगे कि हम बिगड़ने से काफी बच गए थे। यही फॉर द सेम रीजन दैट सर यूज्ड टू स्पेंड so much time driving Swami's message,
And I'm reminded of one incident that really, I would love to share with all of you. This was probably in my second year, the year 2005. Harry Potter was a rage at the time. I don't know how many of the youngsters here know that there was a book called Harry Potter. But Harry Potter was the rage, and I had this classmate, serial defaulter, right? Always getting in trouble with sir. I don't know what drove him. He had this book under his table, and he was reading the first chapter of Harry Potter, book 1. And obviously, sir spotted him because he was in the second row. And he said, asked for the book, looked at it. The chapter title was The Chosen One. Okay, and sir looked at it, he read it aloud. He said, The Chosen One. And he looked at the boy, he said, Kya aap chosen one ho? Then he looked at all of us and said, Are you the chosen one? It took us a second to register, and then all of us were like, wow, yes, we are. Right? So every opportunity sir took, and it was a real blessing to relive those moments. Like, sir, जब आपने constant integrated awareness की बात करी, तो sir always used to say, and this was something that he lived and passed on, sir would always tell us, always be alert, was one of the things he would tell us in every class. So we learned a lot of things today, starting with, are we Seva Dal or are we volunteers building walls of tears? Right? And of course, today physical interview is not possible, but how many of us seek the inner view? One of the most profound things that we could hear today is, जब हम ही स्वामी के हैं, तो क्यों चिंता करना? And last but not the least, I think a practical lesson for all of us is the power of the mind. And Swami has driven home that message so many times that if we put our mind to it, the mind is the tool for our liberation or bondage. तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको. आप आए हमारे साथ, आपके एक्सपीरियंसेस, अनुभव शेयर किए. ये हमारा सौभाग्य है इस शुभ अवसर पर आपके साथ वक्त बिताने का. भगवान के आभार हैं हम कि हमें ये मौका मिला. हमारा प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक छोटी सी तोहफा तैयार किया है. इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूँ श्री चौधरी अंकल और विश्वनाथन अंकल को. We also have the rare opportunity to felicitate Sir's better half, about whom he spoke so much and so highly. I invite ma'am to please come and felicitate Srimati Jain. Srimati. Request Uma Didi to please come forward and felicitate ma'am. We will end today's evening's program with a bhajan in the divine golden voice, followed by Mangal Aarti. Sai Ram.
तत्सत् श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु सिद्ध बुद्ध तु स्कंध विनायक सविता पावक तु सविता पावक ब्रह्ममस्तु यहोवशक्ति तु यीशु पिता प्रभु तु रुद्र विष्णु तु राम कृष्ण तु रहीमताओ तु रहीमताओ तु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानंद हरि तु अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु साई आत्मलिंग शिव तु। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक
पर्ति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा ॐ जय जगदीश हरे पिता गुरुदैवमु मरि अंतयो नीवे स्वामी मरि अंतयो नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयना ॐ जय जगदीश हरे रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदातं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष
प्रदातं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्ष प्रदातं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि साई विभूतिम् इदमाश्रयामि।